حسین، ہندوستان میں ذکر حسین، قبرستان میں ذکر حسین، ہر ایک لب پہ ذکر حسین، ہر ایک زبان پر ذکر حسین، ہر ایک لب پہ ذکر حسین، اس لیے کہ لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، ہر ایک لب پر ترانہ علی کے بیٹوں کا، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں۔ شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بہت خوب، بڑا ہی بات ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، ہر جگہ ذکر حسین۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ اس انداز میں پھیلے کہ ہمارے دل میں حسین ہے، ہمارے ابا کے دل میں حسین ہے، ہمارے بیٹوں کے دل میں حسین ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے دل میں بھی حسین ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہر پوروا والوں، آپ کی حالت کو میں نہیں سمجھ پا رہا، آپ کی کیفیت کو میں نہیں سمجھ پا رہا، البتہ دنیا میں جو ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، جن کے اندر صدیق کے صداقت کی جھلک پائی جاتی ہے، جن کے اندر عمر کی عدالت کا عکس نظر آتا ہے، جن کے اندر عثمان کی سخاوت کی جھلک نظر آتی ہے، جن کے اندر علی کی شجاعت کی جھلک نظر آتی ہے، ان تمام عشاقان مصطفیٰ سے آپ پوچھو تو سب تڑپ کر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کا انسانوں پر احسان ہے حسین، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے حسین۔ قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسین۔ حضرات محترم حسین پاک کے شہدائی جو عاشق آپ ہو، دیوانے آپ ہو، آپ کیا سوچ رہے ہو؟ مولانا بولتے جائیں میں نہ بولوں گا، نقیب صاحب پڑھتے جائیں میں نہ بولوں گا، شاعر شعر پڑھتے جائیں میں نہ بولوں گا۔ ایک بات بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن میں اکثر اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، میرا بھی تعلق آپ کے محبوب ضلع سیتامڑھی سے ہی ہے، میں دیکھتا ہوں محرم کا چاند نظر بھی نہیں آیا ہے، بچے ڈھول لے کر نکلتے ہیں، پیٹتے اور کہتے یا حسین، بچے ڈھول لے کر نکلتے ہیں، پیٹتے کہتے یا حسین۔ ایک محرم کو یہی نعرہ، دو محرم کو یہی نعرہ، تین محرم کو یہی نعرہ، چار محرم کو یہی نعرہ، پانچ محرم کو یہی نعرہ، چھ محرم کو یہی نعرہ، سات محرم کو یہی نعرہ، آٹھ محرم کو یہی نعرہ، نو محرم کو یہی نعرہ، 10 محرم کو یہی نعرہ، اور 10 روز کے بعد بھول جاتے ہیں کہ امام حسین بھی کوئی ہے، ہم ان کے غلام بھی ہیں، وہ ہمارے آقا بھی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور اسی کا اثر نظر آ رہا ہے کہ جب آپ اس اکھاڑے میں، اس جلوس میں گٹکا کھا کے، شیکھر کھا کے، شراب پی کے، اپنے ناپاک منہ سے امام پاک کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو فائدہ حاصل ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے، سجاد رضوی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے کہ آج اس شہید اعظم کانفرنس میں بیٹھ کر اگر آپ حسین پاک کے نام کا نعرہ لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہی نعرہ کل محشر میں آپ کا بیڑا پار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی نام لو، نام لینے کا وقت ابھی ہے، اور اس انداز میں نام لو کہ بچہ بچہ بولے حسین میرے ہیں، بڑے بزرگ بولے حسین میرے ہیں، جوان بولے حسین میرے ہیں، علماء بولے حسین میرے ہیں، فقہا بولے حسین میرے ہیں، مفتیان اعظام بولے حسین میرے ہیں، مفکرین بولے حسین میرے ہیں، مدرسین بولے حسین میرے ہیں، محققین بولے حسین میرے ہیں، اور یہ جو علماء فقہا صلحاء مفتیان اعظام کہہ رہے ہیں حسین میرے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، ارے بڑی بات یہ ہے کہ آمینہ کے لال نے، محبوب کردگار نے، ہم سب کے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین،
किसी से मोहब्बत करो, तुम्हारी मर्जी है। अकील खां कादरी कहे किसी से मोहब्बत करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब नबी ने कह दिया है तो तुम्हारी मर्जी नहीं बल्कि ये खुदा की मर्जी है। अब हुसैन से मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह बोल सकते धीरे से। एक नारा हैदरी, मतलब हैदरी सरदार का नाम। तुम उस हुसैन का नाम लेने से कतरा रहे हो जिन्होंने तुम्हें पहचाने बगैर तुम्हारे नाम पे बेटे तवज्जो चाहता हूँ आज इसी रंग में। तुम उनका नाम लेने से कतरा रहे हो, न वो तुम्हारे दादा को जानते थे, न तुम्हारे बाबा को जानते थे, न तुम्हें जानते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तुम्हारे लिए ईमान बचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम तक कुरान पहुंचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम तक इस्लाम पहुंचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम्हारे जान की हिफाजत की, जब जरूरत पड़ी ईमान की हिफाजत की, जब जरूरत पड़ी कुरान की हिफाजत की, तो हुसैन पाक ने ये नहीं सोचा कि हर पुरवा वाले कैसे हैं, किनके बेटे हैं, किनके पोते हैं। अरे ये तो हुसैन पाक का एहसान है कि जब नाना के दीन को जरूरत पड़ी तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस्लाम को इस अंदाज में बचाया कि खुद गए करबला, बेटों को ले गए करबला, खुद गए करबला, भतीजों को ले गए करबला, खुद गए करबला, भांजों को ले गए करबला, खुद गए करबला, भाइयों को ले गए करबला, खुद गए करबला, जानेसारों को ले गए करबला, खुद गए करबला, अकीदतमंदों को ले गए करबला, खुद गए करबला, पूरे खानवाने को ले गए करबला। और यजीदियों को ललकार के कहा कि जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये मुझसे कभी न होगा। नबी का चाहो चला। साहब की बला क्या उस हुसैन पाक का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? आप शर्मा रहे हो क्या? क्या उस हुसैन पाक के नाम का भी आप नहीं कर सकते? हजरत कुरान का एक एक लफ्ज आदमी पढ़े बोले उसको सवाब मिलता, क्यों? कुरान फरमाने रहमानी है। और एक बात बता दूं, मेरा नाम सज्जाद रजवी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अकील खान कादरी का नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जौहर साबरी का नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तौकीर मदनी का नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलाम मुस्तफा रजवी का नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लामा उज़ैर अहमद मिसबाही का नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सालिमुल कादरी साहब का नाम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलाम अहमद रजा साहब का नाम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हुसैन पाक का और हसन मुश्तबा का वो पाक नाम है कि इनका नाम तुम यूं ही ले लिया करो, यकीनन तुम्हारे नाम अमाल में नेकियों में इजाफा होगा। इसलिए कि ये नाम इंसानी नहीं है, इसलिए कि ये नाम बस्ती वालों का रखा हुआ नहीं है, इसलिए कि ये नाम उलमा का रखा हुआ नहीं है, इसलिए कि ये नाम भी रहमानी है। लाने वाले जिब्रील है और पहुंचाने वाले मुस्तफा है। गोया हसन हुसैन ये नाम भी खुदा का फरमान है, कलामे इलाही। तो ये ऐसा पाक नाम इसके लेने से नाम है आमाल के नेकियों में इजाफा होगा।
लेकिन आप तो बेदार नहीं, आप तो तैयार नहीं, आप सुन रहे हैं। अच्छा, शायद आपको किसी ने ये समझा दिया होगा कि कब्रिस्तान के पास बैठकर जोर जोर से नहीं बोलते, तो मैं आपको बता दूं कि सही है। कब्रिस्तान के पास बैठकर न जोर से बोलते हैं, न जोर से हंसना चाहिए, न शोर शराबा करना चाहिए, लेकिन शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि इस मजलिस में आप जितना जोर से बोलेंगे कब्रिस्तान वाले उतना ही आपसे खुश होंगे, उतना ही आपसे खुश होंगे। कोई बेजार ना होगा आपसे, बल्कि हर कोई आपकी आवाज को सुनने का मुंतजिर है। इसलिए कि जब आप ऐसे बोलते हैं तो दुनियादार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं और नवासाए रसूल की बात कर रहे हैं। और नवासाए रसूल की शान ये है कि सज्जाद रज़वी उनकी शान बयान करे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उलमाए किराम उनकी शान बयान करे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रजा से राजी हुआ करता था। सुभान अल्लाह, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। ये वही हसनैन करीमैन है जिन्होंने करबला में अपने आप को लुटाया, अपने घर बार को लुटाया। लेकिन हर पूर्वा वालों गौर करना, इमाम पाक की जो जिंदगी है वो 3 दिन की करबला वाली ही जिंदगी नहीं है, बल्कि 3 दिन पहले 3 दिन के अलावा भी हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी के कुछ अय्याम मक्के में गुजारे हैं। हुसैन पाक ने अपने जिंदगी के कुछ अय्याम मदीने में गुजारे हैं। हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी के कुछ अय्याम सफर व हजर में गुजारे हैं। आखिरी का वो 3 दिन करबला में गुजरा है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहता हूँ, एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ। हुसैन पाक मक्के में रहे, हुसैन पाक मदीने में रहे, हुसैन पाक सफर में रहे, हुसैन पाक हजर में रहे, हुसैन पाक इबादत में रहे, हुसैन पाक रियासत में रहे। लेकिन मक्की जिंदगी को लोग भूल गए धीरे धीरे, मदनी जिंदगी को लोग भूल गए धीरे धीरे, सफर वाली जिंदगी को लोग भूल गए धीरे धीरे, हजर वाली जिंदगी को लोग भूल गए धीरे धीरे। लेकिन आखिरी का वो जो 3 दिन है जिसमें उन पर पानी बंद किया गया था, वो लोगों को याद है। जब उनके 6 माह के बेटे की कुर्बानी पेश की गई थी, वो याद है। जवान 18 साल का अली अकबर कुर्बान होता है, वो लोगों को याद है। इमाम कासिम की जवानी लूटी जाती है, वो लोगों को याद है। और मोहम्मद की 9 उमरी में उनकी कुर्बानी होती है, वो लोगों को याद है। हजरत मुस्लिम इब्न अकील की जाने सारी लोगों को याद है। मोहम्मद इब्राहिम की कुर्बानी लोगों को याद है। हजरत मुस्लिम इब्न औसजाजी जाने सारी और कुर्बानी लोगों को याद है। मदीने वाली जिंदगी लोग भूल गए, मक्के वाली जिंदगी लोग भूल गए, सफर वाली जिंदगी लोग भूल गए, लेकिन करबला वाली जिंदगी लोगों ने याद रखा। मैं यही सवाल लेकर आम मोमिनीन के दरमियान गया, आम लोगों के दरमियान गया कि क्या बात है, हुसैन तो मदीने में भी रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन तो मक्के में भी रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन तो सफर में भी रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन करबला में जो थे वो तुम्हें मालूम है, वो कैसे? करबला में जो थे वो तुम्हें मालूम है, वो कैसे? जवाब आया, सज्जाद रज़वी तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन करबला में अनजाने में ना थे, हुसैन करबला में धोखे में ना थे, हुसैन करबला में पहला और फुसला कर बुलाए ना गए थे, बल्कि हुसैन के नाना ने बचपने से ये खबर देकर उनको तैयार कर दिया था कि कल को करबला में बेटों की कुर्बानी मांगी जाएगी, कल को करबला में शहजादों की कुर्बानी मांगी जाएगी, कल को करबला में अपने जानेसारों की कुर्बानी मांगी जाएगी। तो तुम धोखे में न रहना, पीछे न रहना, बल्कि नाना की दीन की खातिर सबसे आगे जाना। और जब जरूरत पड़े जान लुटाने की तो तुम आगे रहना, जब जरूरत पड़े माल लुटाने की तो तुम आगे रहना, जब जरूरत पड़े खानदान वालों को पेश करने की तो तुम पेश करना। और दुनिया वालों को ये पैगाम देना, ऐ लोगों, मोहब्बत रसूल का और मोहब्बत इलाही का दावा तो तुम भी करते हो, लेकिन सुनो, तड़प कर जान देते हैं। मोहब्बत ऐसी होती है, रसूलुल्लाह के आशिक की हालत ऐसी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
ताली लगाइए। सुभान अल्लाह भी आप ही कहिए। मौलाना गुलाम मुस्तफा रज़वी साहब आप ही नारा लगाइए। सुभान अल्लाह भी आप ही कहिए। हर पूर्वा में किसी को नारा याद है क्या? खड़े होकर लगा सकता है? मैं बहुत प्यारी दुआ करने वाला हूँ, किसी को याद है क्या? बीच में कोई खड़ा होकर नारा लगाए कहीं से, पूरे मजमे में कोई है? किसी को याद नहीं है? मैं हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अब मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के सदक़े आप कहोगे हम कर रहे हैं हरपुरवा में, सीतामढ़ी जिला में, बाजपट्टी प्रखंड में, थाना में, आप कहते हो इंटरनेशनल। ये जो 5-6 वो कैमरा लगा हुआ है ना, ये लोग डालेंगे ना तो पूरी दुनिया आपको देखेगा कि आप किस तरह नहीं बोल रहे। ये लोग मुलाहिजा करेंगे, बाप रे कारी सज्जाद रज़वी बोल बोल के थक गए, लेकिन हरपुरवा वालों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अल्लामा अकील खान कादरी बोल बोल के थक गए, लेकिन इनकी जबान से या हुसैन भी नहीं निकलता था, जबकि यही कहते थे कि हुसैन पाक के नाम पर जान दे देंगे। मैं कहता हूँ जान तो दूर की बात है, आपको एक वाकया सुनाता हूँ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन जब करबला के सफर पर थे, आपने एक मौके चराग बुझाकर अपने अकीदतमंदों को, अपने जानेसारों को, अपने चाहने वालों को कहा था कि यजीदी मेरा दुश्मन है, यजीद ये चाहता है कि मुझसे बदला ले, मुझसे मुकाबला करे, मुझको मारे, मेरे बेटों को कुर्बान करे, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यूं ही मेरी मोहब्बत में आ गए हो। एक काम करो, क्यों मेरे लिए अपने बीवी बच्चों को तकलीफ दोगे? क्यों मेरे लिए अपने बच्चों को यतीम करोगे? क्यों मेरे लिए अपने घर को बर्बाद करोगे? मैं बखुशी इजाजत देता हूँ, मैं बखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम में से जो जाना चाहे चला जाए अपने बच्चों के पास। न मैं नाना से शिकायत करूँगा, न मैं मुस्तफ़ा से शिकायत करूँगा, न मैं मुस्तफ़ा के खुदा से शिकायत करूँगा। इमाम ने अख्तियार दिया था जिनको जाना है जाए, इमाम ने अख्तियार दिया था जिनको जाना है जाए। मैं इसका मुआखजा नहीं करूँगा, मैं इसका बदला नहीं मांगूंगा। मेरी खुशी से, मेरी मर्जी के मुताबिक जो जाना चाहता है वो चला जाए। इमाम ने चराग भी बुझा दिया कि अगर मेरी नजर के सामने जाने में शर्म आ रही है तो चराग बुझा देता हूँ। अंधेरे में चले जाना, अंधेरे में चले जाना, अंधेरे में चले जाना। लेकिन ऐ हरपुरवा वालों तवज्जो करना, तख्ती दिल पे एक एक जुमले को नोट करना। इमाम ने चराग बुझाया तो किसी दीवाने ने चराग को रोशन कर दिया और कहा या इमाम पाक, ऐ नबी के लाडले, ऐ ज़हरा के नूरे आयन, ऐ अली के दिलों के चैन, ऐ खुदा के महबूब, हम सब के आका इमाम हुसैन, आपने क्या सोचा कि हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने बच्चों पर है? हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने परिवार वालों पर है? हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने आने वाली मुस्तकबिल की जिंदगी पर है? ना ना या इमाम पाक, जिस दिन हम आपके साथ चले थे उसी दिन सर पे कदम, सर पे कफन बांध कर निकले थे और ये इरादा कर लिया था कि मैं हुसैन के साथ रहूंगा, मैं हुसैन के बच्चों के साथ रहूंगा, मैं नबी के नवासे के साथ रहूंगा और मेरे बच्चों की देखभाल खुदाए ज़ुल जलाल करेगा। मैं नबी के शहजादों के साथ रहूंगा और नबी के आसिफ मेरे शहजादों की हिफाजत करेंगे। और या इमाम पाक, हम मूसा कौम मूसा के लोगों की तरह नहीं है कि जो आप इजाजत दे तो चले जाए या अपनी मर्जी से बहाना बनाकर चले जाए, बल्कि हम उसमें के दीवाने हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे पहले बाजू हमारे कटे होंगे, आपसे पहले गर्दनें हमारी पेश होंगी, आपसे पहले बच्चे मेरे शहीद होंगे, आपसे पहले अपने जानों की कुर्बानी हम देंगे और दुनिया वालों को ये पैगाम देंगे कि आए दुनिया वालों, नबी के लाडलों पर हमने अपनी जान वारी है। इंशाअल्लाह
वजल अल्लाह ताला मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को सवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो तो अंधेरे का फायदा उठाकर नहीं भागे थे, आप तो उजाले में मुंह छिपाए बैठे थे, आप तो उजाले में नहीं बोलते थे, बोले मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता आप जो बैठे ये जिंदगी है? लोग समझते जिंदगी हाथ हिलता रहे इसका नाम जिंदगी है, पैर चलता रहे इसका नाम जिंदगी है, आंखें देखती रहे इसका नाम जिंदगी है, जबान बोलती रहे इसका नाम जिंदगी है, जिस्म सलामत रहे इसका नाम जिंदगी है, सांसें चलती रहे इसका नाम जिंदगी है। लेकिन सुनिए सज्जाद रज़वी, जिंदगी इसको नहीं कहता कि हाथ हिलते रहे, जिंदगी मैं इसको नहीं मानता कि पैर से चलते रहे, जिंदगी मेरी नजर में ये नहीं है कि आंखें देखती रहे, जिंदगी मेरी नजर में ये नहीं है कि जबान बोलती रहे, जिंदगी मेरी नजर में ये नहीं है कि सांसें चलती रहे। आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी कैसी बात कर रहे हो, आपकी ज़बानें हिल रही है तब तो आप बोल रहे हो, मेरी कानें सुन रही है तब तो मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग समझ रहा है तब तो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं तब तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि देखने वाला जिंदा नहीं है, आप कहते हैं बोलने वाला जिंदा नहीं है, आप कहते हैं हाथ से पकड़ने वाला जिंदा नहीं है, आप कहते हैं पैरों से चलने वाला जिंदा नहीं है, तो फिर जिंदा कौन है? अल्लामा अकील खां कादरी तवज्जो चाहता हूँ, मेरी नजर में हाथ के हिलने का नाम जिंदगी नहीं है, मेरी नजर में पैर के चलने का नाम जिंदगी नहीं है, मेरी नजर में आंखों के देखने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा जो हाथ हिले वो हिलते हुए हाथ जिंदगी की अलामत नहीं है, बल्कि बाजू कट जाए अब्बास अलम दरदार के और परचम इस्लाम गिरने न पाए, मेरी नजर में जिंदगी की अलामत ये है। आंखें देखती रहे, दिखती हुई आंखें जिंदगी की अलामत नहीं है, बल्कि आंखें आशूब कराई हो, देखने में तकलीफ होती हो, लेकिन फिर भी एक हाथ से खैबर की दीवार को उठा फेंके, मेरी नजर में जिंदगी ये है। अल-मुख्तसर ये कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या काम जिया। जिंदगी यही है कि पैर ना हो तो ना हो, आंखें ना हो तो ना हो, जबान ना हो तो ना हो, लेकिन लोग याद रखे, लोग याद रखे। मैं तो कहता हूँ सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, यानी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन, लौटा है जिनके वास्ते सूरज भी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, जिसको यकीन आए वो सजदा से पूछ ले, राह हक में हाजिर रूदा हुसैन। हज़रात मोहतरम हुसैन पाक को हम याद इसीलिए करते हैं कि हुसैन ने ये नहीं देखा कि हाथ सही सलामत हो, पैर सही सलामत हो, बल्कि हुसैन ने ये देखा कि इस्लाम सही सलामत हो। हज़रात लोग कहते हैं आजकल कुछ ऐसे भी मुक़र्रिरीन मुअर्रिखीन हैं जिन्होंने करबला की लड़ाई को, बैटल ऑफ करबला को, करबला के जंग को कुर्सी की लड़ाई कह दिया, हुकूमत की लड़ाई कह दिया, इक़्तिदार की जंग कह दिया। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा हाँ, बैटल ऑफ करबला, जंगे करबला, करबला की लड़ाई, करबला का मारका, जंगे करबला, ये हुकूमत की लड़ाई थी, लेकिन दो तरफी नहीं, एक तरफ से। तवज्जो चाहता हूँ, दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से ये हुकूमत के लिए लड़ाई थी। इमाम पाक नहीं बल्कि 22,000 का जो लश्कर जर्राब था वो यजीदी फौज के जो लोग थे, बल्कि यजीद ये चाहता था कि हुसैन हाथ दे देंगे हुकूमत मेरी सलामत रहेगी, हुसैन हाथ दे देंगे कुर्सी मेरी सलामत रहेगी, हुसैन हाथ दे देंगे हुकूमत मेरी चलती रहेगी। और इसी बिना पर यजीद उनके पेटों के दुश्मन हो गए, इसी बिना पर यजीदियों ने उनके शहजादों पर जुल्म ढाए। एक तरफ से जो 22,000 का लश्कर जर्रार था वो हुकूमत बचाने निकले थे, वो गवर्नमेंट को बचाने निकले थे, वो कुर्सी बचाने निकले थे, वो हुकूमत बचाने निकले थे, लेकिन एक तरफ जो 72 नफूस कुदसिया थे, उधर कुर्सी वाले, इधर आयतल कुर्सी वाले, उधर हुकूमत वाले, इधर इमामत वाले, उधर ताकत वाले, इधर खिलाफत वाले, उधर जालिमीन थे, इधर आशिकीन थे।
लड़ाई हजरत मोहतरम इमाम पाक ने कितनी कुर्बानियां दी, कुर्बानियों की हद कर दी। आप करबला की तारीख सुनते हैं, आप करबला की कहानी सुनते हैं। हजरत आजमाइशें तो सबकी जिंदगी में आती है, हर कोई आजमाया जाता है, हर कोई इम्तिहान से गुजरता है, लेकिन इमाम की आजमाइश कितनी बड़ी थी जरा गौर करना। किसी को आजमाया गया औलाद के जरिए, किसी को आजमाया गया रिस्क के जरिए, किसी को आजमाया गया ताकत के जरिए, किसी को आजमाया गया कमजोर करके, किसी को आजमाया गया उसकी बस्ती और मोहल्ले के जरिए, किसी को आजमाया गया उसके जान के बदले। लेकिन इमाम पाक की जिंदगी आप देखिए, दुनिया के जितने इम्तिहान देने वाले थे, दुनिया के जितने आजमाइशों से गुजरने वाले थे, सिवाय अंबियाए साबिकीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम के, इमाम पाक की शान सबसे बुलंद है, इमाम पाक की शान सबसे अजीम है। आजमाइशों में, कुर्बानियों में तवज्जो चाहूंगा। किसी को एक चीज से आजमाया जाता है, लेकिन इमाम पाक को बैक वक्त हर तरीके से आजमाया गया। उनके बच्चों की कुर्बानी उनके नजरों के सामने ली गई, उनके भतीजों की कुर्बानी उनके नजरों के सामने ली गई। उनके घर बार को छोड़ना पड़ा, मदीना छोड़ना पड़ा। अल्लाह अकबर, आका का वो महबूब शहर मदीना जिसके लिए अल्लाह के हुजूर ने दुआएं खैर की थी, आका का वो महबूब शहर मदीना। जब वलीद इब्ने उतबा के पास खत आता है कि सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, हुसैन इब्ने अली से बैअत हो। हुसैन पाक को जब मजबूर करना चाहा गवर्नर मरवान ने, तो हुसैन पाक ने ये फैसला किया कि मदीना छोड़ दूंगा। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन पाक ने ये फैसला किया कि मैं मदीना छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने आलम तसव्वुर में ज़हरा के लाल से, नबी के नूर ऐन से, हमारे दिल के चैन से, जो सबसे बड़े आका के, हमारे जो सबसे बड़े हमारे शोहदा में सबसे बड़े हैं, बादे सहाबा और मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन से मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या इमाम पाक क्या मदीना छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था? आप चाहते तो ये मुकाबला, ये लड़ाई, ये बैठक मदीने में भी रहकर कर सकते थे। आप चाहते तो मदीने में न रहकर तो मदीने के बाहर 200-400 मील दूर चले जाते, वहां पर ये लड़ाई हो जाती, वहां पे ये बैठक होती, वहां पर ये जंग होती। आप चाहते तो सहाबा के दरमियान रहकर यजीदियों का मुकाबला करते। मदीना छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था? मदीना छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? हुसैन पाक ने कहा था कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से नाना के महबूब शहर में खून खराबा हो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से नाना के महबूब शहर की बेहुरमती हो। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, या इमाम पाक क्या इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था? उस शहर को भला कैसे छोड़ सकते थे जिस शहर में आपकी बचपने गुजरी है, जिस शहर में आपकी वालिदा माजिदा की कब्र है, जिस शहर में आका का गुंबद खजरा है, जिस शहर में मस्जिद नबवी शरीफ है, जिस शहर में हजरत सिद्दीक की सदाकत देखी थी, जिस शहर में उमर की अदालत का मंजर देखा, जिस शहर में उस्मान की सखावत का जौहर देखा, जिस शहर में आपके वालिद गिरामी अली की शुजाअत का लोहा माना, जिस शहर की शान ये है कि सब ताज की जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। ऐ आका हुसैन, ऐ इमाम पाक, क्या मदीना छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था? क्या मदीना छोड़ना जरूरी था? तो हुसैन पाक ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, सज्जाद रज़वी तुम जानते नहीं हो मैं किस नबी का नवासा हूँ। अरे तुम मेरे नाना की जिंदगी को पढ़ो, मेरे नाना की सवाने उम्री को पढ़ो, मेरे नाना की हयात को पढ़ो, मेरे नाना की जिंदगी को पढ़ो, तो तुम्हें नजर आएगा कि दावत जुल अशीरा से लेकर ज़ैद इब्ने अरक़म के घर तक, ज़ैद इब्ने अरक़म के घर से लेकर सिद्दीक की साथ, सिद्दीक की नियाबत में, सिद्दीक के साथ से लेकर उमर के आने तक और सहाबाए किराम का एक हुजूम लगने तक मेरे नाना ने इस्लाम की तबलीग की। कभी ताइफ में इस्लाम लेकर जाते, कभी मक्का के पूर्वी क्षेत्र में इस्लाम लेकर जाते, कभी मशरिकी मक्का में इस्लाम लेकर जाते, कभी कल्बे शहर में इस्लाम लेकर जाते, कभी अबू लहब के पास इस्लाम लेकर जाते, कभी उतबा के पास इस्लाम लेकर जाते, कभी शैबा के पास इस्लाम लेकर जाते, कभी अबू सुफियान के पास इस्लाम लेकर जाते, कुरैश के पास इस्लाम लेकर जाते, यहूद और नसारा के पास इस्लाम लेकर जाते। लेकिन कुफारों ने मेरे नाना पर
इस अंदाज में जुल्म किया कि नाना के पास अल्लाह की तरफ से ये फरमान आया कि दुश्मनाने इस्लाम से इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को खतरा है, लिहाजा आप मक्का छोड़ दे, मक्का छोड़ के मदीना चले जाए, मक्का छोड़ के मदीना चले जाए। तो मेरे नाना पर और नाना के जानेदारों पर जब कुफ्फारे मक्का ने जुल्म किया तो नाना ने मक्का को छोड़कर मदीने का रुख किया, इसलिए कि जब इस्लाम को दुश्मनाने इस्लाम से खतरा था, नाना मक्का छोड़कर मदीना आए थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि उसी इस्लाम को खतरे इस्लाम से खतरा है, उसी इस्लाम को मुनाफिकीन से खतरा है, उसी इस्लाम को जालिमीन से खतरा है, उसी इस्लाम को हादिसीन से खतरा है। तो जब नाना के सामने दुश्मनों का हमला था तो रब की मर्जी से मेरे नाना मक्का छोड़कर मदीना आए और मेरे सामने गद्दारों से खतरा है, तो मैं नाना की मर्जी से मदीना छोड़कर मक्का और करबला का रुख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उस वक्त जुल्म हुआ था तो नाना संभाले थे। जब आप सुभान अल्लाह। हज़रात देख रहे हैं मुफक्किर इस्लाम मुफक्किर कौमी मिल्लत हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी साहब बुला तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ हज़रत का इस्तकबाल करिए। सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत सगीर रज़ा बनारसी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आना सब लोग, आगे आ जाए, देखिए आगे कुर्सियां खाली हैं, आगे आ जाते तो काफी अच्छा होता।